Good morning, everyone. So we will continue with our examples. ठीक है? Now I will introduce new concept calls in arrears and calls in advance. Because this concept is very important because इस पे आगे वाली concept depend करेगी forfeiture of the shares and reissue of the shares. So this concept of calls in arrears and calls in advance is very important. लिख लेना example. Example. Example number 9. Example number 9. X Limited subscribed or issued 10,000 shares of rupees 10 each at rupees 60 each. ठीक है? Amount to be paid as follows. Okay? 60 rupees लेने, right? Of rupees 10 each at rupees 12 each. 12 rupees पे इश्यू हो रहा है, ठीक है? So on application rupees 3, on allotment rupees 5, including premium of rupees 2, and first and final call 4. Public subscribed for 9,500 shares under subscription. Public subscribed for 10,000 shares. आगे लिखना. All the money were duly received except Ram, holder of 100 shares, failed to pay allotment and calls. And second, Sita, holder of 50 shares, paid calls at time of allotment itself. Allotment money itself. Pass the increase. This is my question. लिख लेना. Make it fast. We have to deal with a new concept. Totally new concept. कुछ अलग नहीं है. Some shareholders will not pay you in right money in time. Some will pay you money in advance.
X Limited issued 10,000 shares of rupees 10 each at rupees 12 each. The amount to be paid as on application 3, on allotment rupees 5, and on first and final call rupees 4. Public subscribed for A under subscription and B full subscription. All the money were duly received except Mr. Ram, holder of 100 shares, failed to pay allotment and call money. Sita, holder of 50 shares, paid calls at the time of allotment money itself. Give the entries. ठीक है? Let's start. You should understand one thing. There is a Ram जिसके पास 100 shares है. राम ने हमें 3 रुपीज दिए होंगे, राइट? राम ने हमें 3 रुपीज दिए होंगे. कौन से 3 रुपीज? एप्लीकेशन के. ऑब्वियसली एप्लीकेशन तो सबको देना पड़ता है, एप्लीकेशन से कोई नहीं छूटता. अनलेस एंड अंटिल यू पे एप्लीकेशन मनी यू वोंट गेट शेयर्स, राइट? सो राम ने आपको 3 रुपीज दिए हैं. 100 शेयर्स के पीछे ही हैज गिवन यू रुपीज 3. ट्राई टू अंडरस्टैंड. 100 रुपीज के पीछे, 100 शेयर्स के पीछे ही हैज गिवन यू रुपीज 3. ही हैज नॉट गिवन यू रुपीज 5 एंड ही हैज नॉट गिवन यू रुपीज 4. मतलब आउट ऑफ 12 रुपीज, out of rupees 12, he has paid you rupees 3 at the time of application. This is paid by him or received by company, and 9 rupees is unpaid by him or not received by company. So shareholder Ram, out of rupees 12, paid 3 rupees and has not paid 9 rupees. So this 9 rupees which he has not paid, company has called that 9 rupees, but he has not paid, is called as calls in arrears. Calls in arrears. Amount called by company but not paid by shareholder is calls in arrears, is a asset of a company. Receivable है ना कंपनी को, obviously has a debit balance. Any receivable is debit. Try to understand. So हमने उनसे 12 रुपए मांगे, उसमें से हमें बैंक में आए 3 रुपीज. कॉल्स इन एरियर्स में 9 रुपीज है. So ओवरऑल एंट्री, अगर कोई मुझे बोलता है राम के शेयर की एंट्री क्या होगी, खाली राम के शेयर्स की, मैं बोलूंगा बैंक अकाउंट डेबिट 3 रुपीज, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 9 रुपीज, to capital 10 rupees and to premium 2 rupees. अगर कोई मुझे कॉमन एंट्री बोलता है, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, लिखना मत, समझ लेना. राम की एंट्री फॉर राम्स 100 शेयर्स क्या रहेगी? बैंक अकाउंट डेबिट. नेट एंट्री बोल रहा हूं, सब होने के बाद क्या बचेगा? बैंक अकाउंट डेबिट 100 शेयर्स के पीछे कंपनी रिसीव 3 रुपीज, 300 रुपीज आ गए बिकॉज ही पेड एप्लीकेशन मनी. Calls in arrears account debit. 100 shares के पीछे he didn't pay 9 rupees. We demanded but he didn't pay. 2. Share capital 100 multiply by, हमने 10 का 10 कैपिटल उससे मांगा था. टू सिक्योरिटीज प्रीमियम और शेयर प्रीमियम 100 मल्टीप्लाई बाय 2. ये एंट्री फॉर राम शेयर होगी. बहुत सिंपल एंट्री है. हमने ओवरऑल 12 रुपए मांगे, हमने 100 शेयर्स के पीछे 12 रुपए मांगे, उसमें से 3 रुपए आगे वो बैंक में रहेंगे, जो नहीं आए वो कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट है, जो नहीं आए वो कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट है. सो कॉल्स इन एरियर्स इज दैट कॉल्स विच इज मेड बाय कंपनी. हमने डिमांड किया है, हमने उनसे मांगा है, बट दे आर नॉट पेड अस. आगे नेक्स्ट, व्हाट अबाउट सीता. सीता ने एप्लीकेशन के टाइम 3 रुपीज दिए, अलॉटमेंट के टाइम 5 रुपीज दिए, एंड उसके साथ ही उसने 4 रुपीज भी दिए. अलॉटमेंट के टाइम ही बोलते ये ले लो अलॉटमेंट के 5 और ये ले लो कॉल्स के 4. उसने हमें अलॉटमेंट के टाइम ही 9 रुपए दे दिया. ट्राई टू अंडरस्टैंड हुआ क्या है. सीता डिफॉल्टिंग नहीं है, सीता एडवांस में दे रहे. राम इज अ डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर. उसने डिफॉल्ट किया, ही हैज नॉट पेड मनी इन टाइम. हाउएवर सीता हैज पेड यू इन एडवांस.
उसने कॉल का पैसा अलॉटमेंट के टाइम ही दिया है. So that 4 rupees which is paid by her in advance is calls received in advance. Calls, right, in advance. उसको बोलते हैं calls in advance. It is a liability of the company. Anything received in advance is a liability. So company क्या करेगी, अलॉटमेंट के टाइम सीता से 5 रुपए तो लेगी अलॉटमेंट के, प्लस 4 रुपए भी लेगी. वो दे रही है तो लेगी कंपनी. आते हुए लक्ष्मी को कभी नहीं बोलना है. अगर सीता खुद होके 4 रुपए एक्स्ट्रा दे रही है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट इटसेल्फ, तो हम वो लेंगे. एंड लैटर ऑन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, लैटर ऑन हम जब 4 रुपए मांगेंगे, सबसे 4 रुपए मांगे कॉल के, तब सीता हमें वो 4 रुपए देगी नहीं, बिकॉज शी हैज ऑलरेडी पेड अस. तब वो बोलेगी कि मैंने आपको 4 रुपए अलॉटमेंट के टाइम ही पेड किए. टू दैट एक्सटेंट, मतलब पहले हमें उतना ज्यादा मिलेगा, बाद में उतना हमें कम मिलेगा. फर्स्ट वी विल रिसीव दैट 4 रुपीज एंड लेटर वी विल रिसीव 4 रुपीज लेस. तो ओवरऑल बराबर हो जाएगा. ठीक है, आगे लेट्स स्टार्ट विद द राइट. ठीक है, लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन. कैन कंपनी टेक कॉल्स इन एडवांस? यस, इट ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. बट अगर कंपनी कॉल्स एडवांस में लेती है, कंपनी हैज टू गिव 12% इंटरेस्ट टू शेयर होल्डर्स. Example, suppose date of this is example 1st of June and date of this is 1st of October. मतलब जो 1st अक्टूबर को कंपनी पैसे मांगने वाली है, वो सीता हमें 1st जून को ही देती है. तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर कंपनी को 4 मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा. वो 4 रुपए उसने जो दिए मल्टीप्लाई बाय 50 शेयर, 4 मल्टीप्लाई बाय 50 शेयर, शी पेड 200 इन एडवांस. वो 200 उसने कब पे करने थे? 1st अक्टूबर को. उसने कब पेड किए? 1st जून को सपोज. सो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 मंथ्स का कंपनी को इंटरेस्ट देना होगा एट द रेट ऑफ 12% पर एनम. तो जनरली कंपनीज बोलते क्यों इंटरेस्ट देते बैठना है? इफ कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी को ऑथराइज करते हैं टू रिसीव मनी इन एडवांस, देन ओनली दे कैन टेक कॉल्स इन एडवांस, अदरवाइज दे कैन नॉट. इफ दे टेक कॉल्स इन एडवांस, दे हैव टू गिव इंटरेस्ट. उनको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है. ठीक है, आगे इट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी वेदर टू टेक मनी इन एडवांस और नॉट. फर्स्ट ध्यान देना मैं कैसे कर रहा हूं प्लीज. दिस इज केस 1 फॉर 9,500 शेयर्स, केस 2 फॉर 10,000 शेयर्स. फर्स्ट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट. बैंक अकाउंट डेबिट 9,500 shares पे we received application money of 3. 2 share application account 9,500 multiplied by 3. Second, now there is the under subscription. I have issued 10,000 shares, public subscribe for 9,500 shares. I can allot only 9,500 shares. मतलब जिसने जितने डिमांड किए उसको उतने शेयर्स मिलेंगे. यस, अब एंट्री आएगी. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 9,500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 3. 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 9,500 से कितने शेयर्स अलॉट हुए? 9,500. ये जो एप्लीकेशन के टाइम 3 रुपीज है, एप्लीकेशन के टाइम 3 रुपीज है, उसका बाइफर्गेशन क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड. उसका बाइफर्गेशन क्या है? मैं यहाँ पे चाहिए तो लिखता हूं आपके लिए. टेबल किधर गया वो? ये वाला ध्यान देना. ओके, लेट्स कंप्लीट इट. बारह पे कंपनी दोनों डिमांड 3, 5, 4. 3, 3, 4. ठीक है. सो जो एप्लीकेशन के टाइम 3 रुपीज आया, पूरा का पूरा क्या है? कैपिटल है. तो एंट्री आएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 9,500 मल्टीप्लाई बाय 3 टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम 0. कुछ रिफंड करने की जरूरत है क्या? नहीं.
जब अंडर सब्सक्रिप्शन या फुल सब्सक्रिप्शन होता है रिफंड नहीं होता, ओवर सब्सक्रिप्शन में रिफंड हो सकता है। नंबर 3, अब ध्यान देना, वी विल डिमांड 3 रुपीज का किस्सा होगा, नाउ वी विल डिमांड 5 रुपीज। 9,500 शेयर्स हमने अलॉट किए, 9,500 शेयर्स के पीछे वी विल डिमांड 5, उसमें से 3 रुपीज कैपिटल रहेगा, 2 रुपए प्रीमियम रहेगा। सो एंट्री आएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 9,500 के पीछे आई विल डिमांड 5 रुपीज, बाइफर्गेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम, 3 रुपीज का कैपिटल, 2 रुपीज का प्रीमियम। ठीक है। नंबर 4, नाउ यू विल रिसीव मनी, ध्यान देना, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ट्राई टू अंडरस्टैंड कितना पैसा आपके पास आएगा। ध्यान देना, एक्चुअली आपको 9,500 पे 3 रुपीज रिसीव होने चाहिए। आइडियली यू शुड रिसीव 9,500 के 3 नहीं 5 रुपीज। आपने कितने डिमांड किए? 5। सो आइडियली यू शुड रिसीव 9,500 पे 3 रुपीज, बट राम जिसके पास 100 शेयर्स है, he didn't pay you 5 रुपीज। उसने आपको, राम ने आपको यहाँ पे 5 रुपए पेड नहीं किए, अलॉटमेंट के पेड नहीं किए। सो आपको मिलने कितने चाहिए थे? 9,500 वाला ने 5 रुपए देने चाहिए थे, उसमें से 100 शेयर्स किसके? राम के, उसने नहीं दिए। प्लस सीता ने उसके 50 शेयर्स पे हमें 5 रुपीज तो दिए हैं। देखो, सीता के शेयर्स इस 9,500 में है, उसने हमें 5 रुपीज दिए, प्लस उसने हमें लास्ट के 4 रुपए भी दिए। शी पेड अस दिस 4 रुपीज एट द सेम टाइम। क्या हुआ है? ध्यान देना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। टोटल कितने शेयर्स है? 9,500। इसमें 3 लोग हैं, एक है राम, एक है सीता और अदर्स। राम के पास कितने शेयर्स है? 100। सीता के पास कितने शेयर्स है? 50। अदर्स कितने में आ गए? 9,500 माइनस 100 माइनस 50, 9,350। अच्छा, अलॉटमेंट का सीता ने 5 रुपीज पेड किया, अदर्स ने 5 रुपीज पेड किए, इसने पेड नहीं किया। सो कहने से हमें 9,400 शेयर्स पे राम छोड़ के बाकी लोगों ने 5 रुपए पेड किए, तो वही है 9,500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 100 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 5 इज 9,400 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 5। तो हमें टोटल 9,500 शेयर्स में से 100 शेयर्स पे 5 रुपए नहीं आए। मतलब कितने शेयर्स पे हमें 5 रुपए आए? 9,500। इस पे सीता के 5 रुपए है, एंड सीता ने खाली हमें 5 रुपए नहीं दिए, उसके 50 शेयर्स पे शी हैज पेड अस 4 रुपीज ऑफ द कॉल। तो हमें टोटल इतना पैसा आ गया। सो अब ध्यान देना, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट 100 शेयर्स के पीछे 5 रुपीज एरियर्स में। ये यहाँ पे जो माइनस हुआ है ना, यहाँ पे जो माइनस हुआ है वो डेबिट हुआ, ये रिसीवेबल है। 2 यहाँ पे जो ऐड हुआ है रिसीव्ड एडवांस है वो, सो बैंक में डेबिट हुआ है तो उसका क्रेडिट भी इफेक्ट आना चाहिए। कॉल्स रिसीव्ड इन एडवांस, इन एडवांस 50 शेयर्स के पीछे 4 रुपीज आर रिसीव्ड इन एडवांस, एंड 2 शेयर अलॉटमेंट क्लोज हो जाएगा। शेयर अलॉटमेंट 9,500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 5 रुपीज, एंट्री टैली होगी, चाहिए तो चेक करो, वैल्यूज देखो, वैल्यूज देखो, दिस इज द एंट्री। मैं जानबूझ के इसे मल्टीप्लिकेशन में लिखता तो जल्दी समझ में आता है। देखो एक्चुअली क्या होना चाहिए था, 9,500 वालों ने 5 रुपए देने थे, हमने 9,500 वालों से शेयर्स के पीछे 5 रुपीज मांगे थे, बराबर। उसमें से 100 वाले ने हमें 5 रुपीज नहीं दिए, उसका माइनस किया, मतलब 9,400 शेयर्स पे ही 5 रुपए आ गए। ये तो है, प्लस सीता है जो आपको 4 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रही है, प्लस बैंक में ये आ गया।
सो इसमें से जो नहीं आया वो इन एरियर से उसको डेबिट मारा, और जो एक्स्ट्रा आ गया वो एडवांस से उसको क्रेडिट किया। एंट्री अपने आप टैली होगी। चाहिए तो चेक करो। चाहे तो चेक करो। जो एक्स्ट्रा आया वो मैंने क्रेडिट किया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो डेबिट में जितना कम है उतना और डेबिट करो। बैंक में जितना कम आया वो रिसीवेबल है। बैंक में जितना एक्स्ट्रा आया, बैंक में जो डेबिट हुआ, एक्स्ट्रा डेबिट हुआ है, उतना क्रेडिट भी होना चाहिए, तो ही एंट्री डाली होगी। सीता आज आपको 50 शेयर्स के पीछे 4 रुपीज 200 रुपीज देगी, बट बाद में वो हमें 200 रुपीज कम देगी। ठीक है, आगे नंबर 5, ध्यान देना। अगर आप वैल्यूज में ढूंढते हो तो 9500 माइनस 100 मल्टीप्लाई बाय 5, 47,000 प्लस 200। बैंक में डेबिट है 47,200, एरियस में डेबिट है 500, यहाँ पे क्रेडिट है 200, और यहाँ पे 9,500 मल्टीप्लाई बाय 5, 47,500। आपकी एंट्री वैल्यू होगी, देखो 47,700, 47,700 डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। आगे ध्यान देना। अब हम क्या मांगेंगे? 4 रुपए मांगेंगे। सबसे मांगते टाइम सबसे मांगना है। अब एंट्री आइए, शेयर कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। हम टोटल 9,500 वालों से 4 रुपए मांगेंगे। 2, उसका बाइफर्केशन, शेयर कैपिटल, पूरा का पूरा कैपिटल है, प्रीमियम है ही नहीं। बट क्या आपको सब लोग पैसे देंगे? 2 लोग पैसे नहीं देने वाले। राम जो डिफॉल्ट कर रहा है वो नहीं दे रहा है, एंड सीता भी नहीं देगी। क्या सीता डिफॉल्ट करे? नहीं, सीता ने आपको पहले ही पैसे दे के रखे। अब एंट्री क्या होगी, ध्यान देना। बैंक अकाउंट डेबिट। एक्चुअली मुझे 9,500 के पीछे 4 रुपए आनी चाहिए थे, बट मुझे राम नहीं देगा। क्यों राम नहीं देगा? बिकॉज उसने मुझे अलॉटमेंट का ही नहीं दिया, तो वो कॉल का कहां से देगा? माइनस मुझे सीता भी नहीं देगी। सीता क्यों नहीं देगी? बिकॉज सीता ने मुझे ऑलरेडी दे चुका है, तो फिर से नहीं देगी वो। अब ये जो माइनस हुआ है उतना डेबिट करना होगा। कॉल्स इन एरियर्स, राम का कॉल्स इन एरियर्स 100 मल्टीप्लाई बाय 4, 400 रुपीज एरियर्स में। सीता का क्या था? कॉल्स रिसीव एडवांस। जब मुझे कॉल्स रिसीव एडवांस थे, मैंने क्रेडिट किया था। देखो 50 मल्टीप्लाई बाय 4। अब मैं उसको कॉल्स रिसीव एडवांस को कैंसिल कर दूंगा। कॉल्स रिसीव्ड इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, वहां पे क्रेडिट हुआ था, यहाँ पे डेबिट कर रहा हूं, वो कैंसिल हो गया। 50 मल्टीप्लाई बाय 4, 2, फर्स्ट कॉल अकाउंट कैंसिल हो जाएगा। शेयर फर्स्ट कॉल 9,500 मल्टीप्लाई बाय 4 लिखो। मैं और एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा, सो समझने का ट्राई करो। आगे Why do we allot the shares to Ram if he cannot pay? मुझे थोड़ी ही पता था मैडम वो पे नहीं करेगा। मुझे थोड़ी ही पता था वो पे नहीं करेगा। मैंने शेयर्स अलॉट किए, उसके बाद उसने पेड नहीं किया ना। आगे उससे जब पैसे लेंगे बाद में, हम उससे इंटरेस्ट भी लेंगे। हम उसको 10% के हिसाब से इंटरेस्ट लेंगे उससे। जितने पीरियड के लिए उसका एरियस था ना, उस पीरियड के लिए हम उससे 10% इंटरेस्ट लेंगे। लिखो, मेक इट फास्ट। अब मैं केस 2 समझाता हूं, ध्यान देना। केस 2 मैं नीचे लिख रहा हूं जानबूझ के, प्रैक्टिस के लिए। 10,000 शेयर्स के इनकम। सबसे पहले यू विल रिसीव एप्लीकेशन में, ध्यान देना, बैंक अकाउंट डेबिट। 10,000 शेयर्स के पीछे एप्लीकेशन मनी 3 रुपए दी। 2, शेयर एप्लीकेशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं एंट्री कैसे करता हूं। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 30,000 की एंट्री होगी। सेकंड, शेयर एप्लीकेशन को कैपिटल में कन्वर्ट करना है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
10,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 30,000 को टू शेयर कैपिटल कितना, टू शेयर प्रीमियम कितना। 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आ गए, अलॉट कितने हो गए 10,000। अच्छा, अब मुझे बोलो 3 रुपीज जो एप्लीकेशन मनी है उसमें कैपिटल कितना है 3 का 3, प्रीमियम कुछ है क्या, नहीं, एंट्री अपने पहले होगी। नंबर 3, नाउ तो हमने 10,000 शेयर्स अलॉट किए, अलॉट करने के बाद हम उनसे अलॉटमेंट मनी मांगेंगे। चलो 10,000 के पीछे अलॉटमेंट मनी मांगना है विच इज 5 रुपीज, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 10,000 के पीछे आई कॉल देम 5 रुपीज, 50,000 रुपीज मांगे, उसमें से कैपिटल कितना और प्रीमियम कितना। जो मैंने उनसे 10,000 के पीछे 5 रुपीज मांगा है उसमें से 3 रुपीज का कैपिटल है, 2 रुपीज का प्रीमियम है। सो 50,000 रुपीज मैंने उनसे मांगे, मैंने टोटल 50,000 रुपीज मांगे, उसमें से 30,000 का कैपिटल मांगा, 20,000 का प्रीमियम मांगा। अच्छा, मुझे आए कितने बैंक अकाउंट में। अलॉटमेंट के टाइम एक बंदा मुझे पे नहीं कर रहा है अलॉटमेंट का 5 रुपया, राम, और सीता मुझे कॉल्स एडवांस में दे रही है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरे पास आया कितना 10,000 के पीछे आइडियली आई शुड रिसीव 5, ये होना चाहिए, बट राम है जो मुझे 5 रुपीज पे नहीं कर रहा है। राम है जो मुझे 5 रुपीज पे नहीं कर रहा है उसका एरियस में, प्लस सीता है जो मुझे, उसने तो 5 रुपए दिए हैं, वो मुझे 4 रुपए भी कॉल के दे रहा है। अब ध्यान देना, जो रिसीव्ड रिसीवेबल है उसको डेबिट किया जाएगा कॉल्स इन एरियस, 100 के पीछे 5। 2, कॉल्स रिसीव्ड इन एडवांस, कॉल्स रिसीव्ड एडवांस 50 शेयर्स के पीछे 4 रुपीज, ये लाइबिलिटी है, बाद में मैं डेबिट करूंगा। 2, शेयर अलॉटमेंट, अपने आप अकाउंट क्लोज हो जाएगा, अपने आप अकाउंट क्लोज हो जाएगा। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5, इफ यू वांट टू टेक वैल्यूज ले लो कैलकुलेटर पे, 10,000 माइनस 100, 9,900 पे 5 रुपीज, ये 49,500 है, प्लस 200 एडवांस में आए, एरियस में 500 रुपीज है, यहाँ पे क्रेडिट पे 200 रुपीज है एंड 50,000 है। सो एक एंट्री हुई है बैंक अकाउंट डेबिट 200 तो कॉल्स रिसीव एडवांस क्रेडिट 200, और दूसरी एंट्री हुई है 50,000 हमने मांगे थे उसमें से 49,500 आ गए, 500 एरियस में। योर एंट्री स्टैंडर्ड, अब चाहे तो चेक करो। ये एंट्री नहीं समझे इसे कितने लोग हैं, ये जो मैंने अभी लिखा है उसमें किसका डाउट है, हिसाब लगाना आना चाहिए, कितने पैसे आए, कितने आए हो देखो। आइडियली क्या होना चाहिए, टोटल 10,000 शेयर्स है बराबर, इसमें से राम है, सीता है एंड अदर्स है। राम के पास 100 शेयर्स है, सीता के पास 50 है, अदर्स में राइट यू कैन टेक 10,000 माइनस 100 माइनस 50, 9850। सो अलॉटमेंट के 5 रुपीज इसने पेड किए, अलॉटमेंट के 5 रुपीज इसने पेड किया। तो कैन आई से अलॉटमेंट के टाइम मुझे 9,900 वाले ने 5 रुपीज दिए, और ये 100 वाला है राम जिसने मुझे 5 रुपीज नहीं दिए। सो ये बैंक में आया होगा और ये एरियस में होगा। सो वही तो देखो ना, 9,900 मैंने बैंक में डाला, इन दोनों को साथ में देखो, ठीक है। और फिर ये सीता है जिसने मुझे ये 5 रुपीज तो दिए ही दिए, उसके साथ 4 रुपीज भी दिए, तो मेरे बैंक में और आ गए 50 के पीछे 4 रुपीज। सो मेरे बैंक में 9,900 के पीछे 5 रुपीज एंड 50 के पीछे 4 रुपीज आ गए, तो मैंने वही लिखा है। बट जो मुझे एडवांस में आया, जितना मुझे एडवांस डेबिट में एक्स्ट्रा आया है उतना मैं क्रेडिट भी करूंगा, और जितना मुझे डेबिट में कम आया है उतना मैं डेबिट कर दूंगा इन एरियाज बोलते हैं। दिस इज माय एंट्री। आगे नेक्स्ट, ठीक है, आगे नंबर 5। अब हम कॉल मांगेंगे, सबसे मांगेंगे, राम से भी मांगेंगे,
इन एंटिसिपेशन कि वो हमें अलॉटमेंट और कॉल दोनों पे करे। सीता से भी मांगे, भले ही सीता ने हमें ऑलरेडी कॉल मनी दिया है, पर मांगने का तो काम करेंगे और बाद में उससे उतना कम लेंगे। तो अब कॉल मांगा जाएगा शेयर कॉल अकाउंट और शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। हम मांगते टाइम पूरे शेयर होल्डर वालों से लास्ट कॉल 4 रुपए का मांगे, उसका बाइफर्केशन शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। सर पूरा का पूरा कैपिटल है, प्रीमियम है नहीं कुछ, इन कॉल देयर इज नो प्रीमियम, अच्छी बात है। अब पैसे लेने की बात आ गई बैंक अकाउंट डेबिट। सो 10,000 आइडियली 10,000 वालों ने हमें 4 रुपए देने चाहिए, बट इसमें से एक राम है जो डिफॉल्ट कर रहा है, वो नहीं देगा और सीता भी नहीं देगी। क्यों सीता नहीं देगी? अरे उसने पहले आपको दिया ना, देखो ना यहाँ पे शी वाज ऑलरेडी गिवन यू, फिर से क्यों देगी वो? सो सीता ने भी नहीं दिया। सो 10,000 माइनस 100 राम के डिफॉल्टिंग एरियर्स एंड सीता के 50 इन एडवांस। सो हमें एक्चुअली बात के टाइम 9850 शेयर्स पे ही पैसे आए, जिसने दिए नहीं वो एरियर्स है, कॉल्स इन एरियर्स 100 मल्टीप्लाई बाय 4। यहाँ पे सीता के माइनस हुए, वो एरियस नहीं है, वो हमने पहले क्रेडिट करके रखे थे एडवांस में। तभी सीता ने बोला था ये ले लो अलॉटमेंट के टाइम के 4 रुपए, तब नहीं दूंगी मैं, वो डिफॉल्ट नहीं है। अब जब हमें पैसे एक्स्ट्रा मिले थे, हमने एडवांस को क्रेडिट करके रखा था, अब डेबिट करेंगे। कॉल्स रिसीव्ड इन एडवांस 50 मल्टीप्लाई बाय 4 2। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट अपने आप क्लोज हो जाएगा। शेयर फर्स्ट कॉल 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4 में से सीता ने नहीं दिए बिकॉज उसके एडवांस थे, राम ने नहीं दिए बिकॉज वो डिफॉल्टिंग वाला है, मतलब बाकी 9850 वाले ने हमें दिए। ऐसे उसका बाइफर्केशन लिखो। किसी के डाउट से तो पूछो। एनीवन इज डाउट प्लीज आस्क मी। हिसाब लगाना आना चाहिए किसने कितना दिया। लाइक सीता ने पहले 200 रुपए दिए थे, 50 के पीछे 4 रुपए, तो बाद में वो हमें उतना कम देगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे और हम क्वेश्चन करेंगे बिकॉज ये हमारे लिए बहुत मैटर करेगा। ट्रैक रखना है बस। मेक इट फास्ट। मेक इट फास्ट। ओके टेक अनदर एग्जांपल। ठीक है, अनदर एग्जांपल लिखो। एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10। I think this was example number 9. This is example number 10. X Limited issued 10,000 shares of face value 10 each at rupees
14 each. Amount to be paid ठीक है नहीं. Now I need to change this. Total 14 rupees लेना है. So 4 rupees at the time, 5 and 5. Public subscribe for 10,000 shares and 12,000 shares. ठीक है, यहां पे लिखो ओवर सब्सक्रिप्शन भी है. Excess applications were rejected and refund was made. जिनके एक्सेस एप्लीकेशंस रहेंगे, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन की बात हो रही है. ओवर सब्सक्रिप्शन में देखो यहाँ पे कितने सब्सक्रिप्शंस आ गए 12,000 शेयर्स के लिए. हमने इश्यू कितने किए 10,000 शेयर्स. मतलब एक्सेस एप्लीकेशन कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए आ गए 2,000. तो 2,000 वालों को स्ट्रेट अवे रिफंड किया गया, उनसे 1 रुपए भी नहीं लिए. ठीक है, आगे लिखो, जल्दी लिखो क्वेश्चन. X Limited issued 10,000 shares of face value ₹10 each at a ₹14 each. So यहाँ पे हम प्रीमियम पे शेयर्स इशू हो रहे हैं. अमाउंट टू बी पेड एज ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट एंड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. ठीक है, पब्लिक सब्सक्राइब फॉर, दिस इज फुल सब्सक्रिप्शन. इसमें कोई रिजेक्शन रिफंड वगैरह कोई टेंशन नहीं है. क्वेश्चन सेकंड जो है वो ओवर सब्सक्रिप्शन है, उसमें हमें क्या करना होगा. हम 10,000 शेयर है ना, तो 10,000 शेयर ही अलॉट कर सकते हैं. 12,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आ गए, तो 12,000 शेयर्स में से 2,000 शेयर्स का रिजेक्शन करेंगे और 10,000 वालों को 10,000 शेयर्स इश्यू करेंगे. ठीक है, एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्टेड एंड रिफंड वाज मेड. ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट राम, होल्डर ऑफ 500 शेयर्स, failed to pay allotment money and call money. Sita, holder of 100 shares, paid calls at the time of allotment money itself. उसने कॉल अलॉटमेंट के टाइम नहीं पेड किया. गिव द एंट्रीज. दिस इज माय क्वेश्चन, राइट. अब ध्यान देना सॉल्यूशन. पहले मैं टेबल करता हूं, मेरा हमेशा का टेबल, ये वाला टेबल. दिस इज माय टेबल, कॉपी पेस्ट. ध्यान देना, इस टेबल पे कंट्रोल होना चाहिए. इशू प्राइस टोटल 14 रुपीज है, उसमें से 4 रुपीज प्रीमियम है, 10 रुपीज फेस वैल्यू है, और 455 ऐसे आप डिमांड करने वाले हो. इसमें 2 रुपीज प्रीमियम, इसमें 2 रुपीज प्रीमियम है, यहाँ पे कुछ भी नहीं. 433 हो गए 10 रुपीज. यस, सो एप्लीकेशन के टाइम जो 4 रुपीज आएंगे पूरा का पूरा कैपिटल होगा. अलॉटमेंट के टाइम 5 रुपए मांगेंगे, उसमें से 3 रुपीज कैपिटल, 2 रुपीज प्रीमियम. फिर फर्स्ट कॉल के टाइम 5 रुपीज मांगेंगे, 3 रुपीज कैपिटल, 2 रुपीज प्रीमियम. ठीक है, आगे ध्यान देना. फर्स्ट एंट्री मैं केस 1 ले रहा हूं फॉर 10,000 शेयर्स. ध्यान देना, 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गए. इंडिया की बैंक अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड 10,000 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी पर शेयर 4. 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, $10,000 multiplied by 4. Second, अब एंट्री आएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, $10,000 multiplied by 4. 2 शेयर कैपिटल, टू शेयर प्रीमियम. शेयर कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, 10,000 एप्लीकेशन से 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन से उनको पूरे के पूरे शेयर्स अलॉट हो गए.
₹4 में पूरे की पूरी फेस वैल्यू प्रीमियम, कुछ नहीं, एंट्री डन। थर्ड रिजेक्शन है कुछ नहीं सर, किसी को रिजेक्ट नहीं करना है। फुल सब्सक्रिप्शन में और अंडर सब्सक्रिप्शन में रिजेक्शन नहीं होता, ओवर सब्सक्रिप्शन में रिजेक्शन हो सकता है। आगे अब तीसरा, हम अलॉटमेंट मनी मांगेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स के पीछे अलॉटमेंट मनी मांगेंगे? 10,000 शेयर्स के पीछे अलॉटमेंट मांगेंगे, विच इज ₹5। उसका बाइफर्केशन क्या है? शेयर कैपिटल 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इज ए कैपिटल, 30,000 का कैपिटल है। टू शेयर प्रीमियम और सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 इज प्रीमियम। 50,000 में से 30,000 कैपिटल है, 20,000 प्रीमियम है। नंबर फोर, अब हम पैसे लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। आइडियली 10,000 के पीछे ₹5 आने चाहिए, बट राम है जिसके पास 500 शेयर्स है, डिड नॉट पेड ₹5 ऑफ अलॉटमेंट। बट देयर इज अ सीता जिसके पास 100 शेयर्स है, उसने कॉल के ₹5 पेड किया। सीता पेड कॉल, ये राम डिडंट पेड, राम डिडंट पेड व्हाट? अलॉटमेंट। हमने मांगे बट पेड नहीं किए उसने। अच्छा, मतलब राम से रिसीवेबल है कॉल्स इन एरियस, कॉल्स इन एरियस अकाउंट डेबिट। कितने? 500 शेयर से 500 शेयर में ₹5 राम से रिसीवेबल है। 2 कॉल्स रिसीव्ड इन एडवांस, सीता से 100 शेयर्स के पीछे ₹5 पहले आ चुके हैं। उसने अलॉटमेंट के तो ₹5 दिए, उसने अलॉटमेंट के ₹5 दिए, कॉल के भी ₹5 दिए, और क्या बोला होगा कि मैं जो आपको ₹5 एक्स्ट्रा दे रही हूँ ना, यहाँ पे अलॉटमेंट में जो मैं ₹5 एक्स्ट्रा दे रही हूँ, जब आप मुझसे कॉल मनी मांगोगे ना, तब मैं आपको उतना कम पे करूंगी। आई एम पेइंग यू ₹500 एक्स्ट्रा टुडे, एट जब आप कॉल मनी मांगोगे तब मैं आपको वो ₹500 कम दूंगी। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें पैसे आने से मतलब है, पहले आ रहे नो इश्यूज। 2 शेयर अलॉटमेंट अपने आप क्लोज हो जाएगा, डोंट वरी। शेयर अलॉटमेंट 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5। सो जो पैसे नहीं आए, जो बैंक में नहीं आए, वो एरियस में गए, और जो बैंक में एक्स्ट्रा आ गए वो क्रेडिट हो गए कहां पे? कॉल्स रिसीव्ड एडवांस। नंबर 5, अब हम कॉल मनी मांगेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितना मांगने वाले? 10,000 के पीछे हम ₹5 मांगने वाले, उसका बाइफर्केशन क्या है? टू शेयर कैपिटल, टू शेयर प्रीमियम। कैपिटल के पीछे हम 10,000 मल्टीप्लाई बाय, वहां पे भी ₹3, एंड प्रीमियम 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2। 30,000 का कैपिटल मांगने वाले, 20,000 का प्रीमियम मांगने वाले, सबसे। उसमें राम से भी मांग रहे, सीता से भी मांग रहे, ठीक है। अब होगा क्या? बैंक में बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 के पीछे आइडियली हमें ₹5 आनी चाहिए, बट राम विल कंटिन्यू टू डिफॉल्ट, सीता विल नॉट पे ऑन 100 मल्टीप्लाई बाय 5। वो नहीं पे करेगी, उसके पीछे रीजन है, उसने ऑलरेडी पेड किया है। राम पे नहीं कर रहा है बिकॉज उसका अलॉटमेंट ही ड्यू है, वो डिफॉल्ट में है। कॉल्स इन एरियस, राम के शेयर्स 500 मल्टीप्लाई बाय 5। कॉल्स रिसीव्ड इन एडवांस कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, देखो 2 कॉल्स रिसीव्ड एडवांस से, अब वो डेबिट हो गए तो उसमें बैलेंस 0 हो गया। 100 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अपने आप क्लोज हो जाएगा। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5, चेक करो। अगर डेबिट पे कुछ माइनस होगा, बैंक में अगर कुछ माइनस होगा, तो डेबिट ही होगा। या तो कॉल्स इन एरियस हो सकता है, किसी ने दिया नहीं, या किसी ने ऑलरेडी दिया था इसलिए अभी नहीं दे रहा है। आगे
लिखो। सर फोर्थ एंट्री टैली नहीं होती, तुम्हारी नहीं हो रही होगी, मेरी हो रही है, मेरी होगी आई नो, चेक करो, टेक द अमाउंट, अमाउंट लेके देखो, अमाउंट लेके देखो, एंट्री टैली होगी, मुझे दिख रहा है स्ट्रेट अवे, क्यों नहीं होगी एंट्री टैली? टेक द अमाउंट, 10,000 multiplied by 5 minus 2,500 minus plus 500. So debit is 48,000. बैंक में डेबिट है 48,000. बैंक में डेबिट है 48,000. यहाँ पे डेबिट है 2,500. यहाँ पे क्रेडिट है 500. यहाँ पे क्रेडिट है 50. क्यों नहीं एंट्री डाली हो रही? हो रही मेरी एंट्री डाली 50,500 पे एंट्री डाली हो रही, हो ही नहीं सकता कि गलत होगा। आई कीप ट्रैक, मैं ट्रैक रखता हूं, मेरे दिमाग में एक मैंने बना के रखा कि मुझे कितने आनी चाहिए, 50,000 के पीछे 5 रुपीज आनी चाहिए। किसने नहीं दिए? राम ने नहीं दिया। किसने एक्स्ट्रा दिए? सीता ने एक्स्ट्रा दिए। जिसने नहीं दिए उसको डेबिट किया, जिसने एक्स्ट्रा दिया उसको क्रेडिट किया। और जब मैं आज क्रेडिट करूंगा तब मैं समझूंगा, तब मेरे मन को मैं समझाऊंगा कि बाद में जब पैसे आने का टाइम आएगा उतना मुझे कम आएगा। ठीक है, कोई आपको आज एक्स्ट्रा देता है, कल उतना कम देगा। लिखो जल्दी। केस 1 हमने किया जिसमें 10,000 शेयर्स अप्लाइड हुए थे, अलॉट भी हुए 10,000। ठीक है, उसमें से राम जिसके पास कितने शेयर्स थे? 500 शेयर्स थे, उसने आपको अलॉटमेंट का 5 रुपए एंड फर्स्ट कॉल का 5 रुपए, उसने 10 रुपए दिए नहीं। 14 रुपीज में से उसने आपको खाली 4 रुपए दिए, 10 रुपए उसने दिए नहीं। बाद में हम उसके शेयर्स कैंसिल करेंगे। ठीक है, वो कैंसिलेशन का मैंने अभी तक कुछ सिखाया नहीं है, पहले ये तो समझ लेना। सो राम ऐसा बंदा है जिसके पास 500 शेयर्स है, हमने उससे टोटल 14 रुपीज मांगे, हमने उससे टोटल 14 रुपीज मांगे, दिस टोटल इज 14, हमने उससे टोटल 14 रुपीज मांगे, उसमें से ही पेड दिस, ही डिडंट पेड दिस, ये दोनों पेड नहीं किए। सो 14 में से ही पेड अस 4, ही डिडंट पेड अस ₹10। ठीक है, तो 10 रुपए उसने जो पेड नहीं किए उसके लिए हम उसके शेयर्स कैंसिल करेंगे। ठीक है, अब दिस वाज केस 1। नाउ केस 2, 12,000 शेयर्स अप्लाइड हुए। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4 रुपीज आ गए। सॉरी, 12,000 शेयर्स अप्लाई हुए तो 12,000 के पीछे 4 रुपीज आ गए, ओवर सब्सक्रिप्शन है। 2 शेयर एप्लीकेशन, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, अच्छी बात है, ओवर सब्सक्रिप्शन है, बट ओवर सब्सक्रिप्शन में झंझट होती है। क्या? किसी को पैसे रिटर्न करने की झंझट रहेगी, करेंगे ना, कोई इश्यू नहीं, प्रो राटा अलॉटमेंट रहता है। शेयर एप्लीकेशन डेबिट 12,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 48,000 टोटल आए थे, उसमें से 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर प्रीमियम। कैपिटल में 12,000 का नहीं जाएगा, 10,000 का जाएगा। कितने शेयर्स अलॉट कर सकते हो आप? 10,000। यू कैनॉट अलॉट मोर देन व्हाट यू इशूड। अगर आपने 10,000 इशू किए तो अलॉट भी 10,000 ही मैक्स टू मैक्स कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, भले ओवर सब्सक्रिप्शन हो। सो भले 12,000 के पीछे हमें पैसा मिला है, 10,000 शेयर से अलॉट करेंगे, और 4 रुपीज जो एप्लीकेशन है पूरा का पूरा क्या है? कैपिटल है, प्रीमियम कुछ नहीं। अब हमें रिफंड करना होगा टू बैंक। हम 2,000 शेयर एप्लीकेंट 2,000 शेयर्स के जो एप्लीकेशन है उसके लिए हम बोलेंगे वी आर सॉरी। हम इनको कॉन्ग्रेचुलेशन का लेटर भेजेंगे, इनको हम रिग्रेट लेटर भेजेंगे।
इनको अलॉटमेंट लेटर जाएगा, इनको रिग्रेट लेटर जाएगा। 2000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उनको हम हम उनको रिफंड ऑर्डर निकालेंगे, 8000 उनको रिफंड करेंगे। सो हमने टोटल 48,000 लिए, उसमें से 40,000 हमारे पास रहे, 8000 हमने रिटर्न किए। ठीक है, इनको बोलेंगे वी आर सॉरी, हम आपको शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते, आपके 8000 ले लो। तो आगे से हम कितने लोग कितने शेयर्स के पीछे पैसा मांगेंगे? 10,000 के पीछे। ठीक है, ये एंट्री समझ में आ गई? ये एंट्री समझ में आ गई क्या? यस और नो? लिखो जल्दी, यस और नो। ये वाली एंट्री, सेकंड एंट्री। अगर यस है तो ये आगे जाने में पॉइंट है, नहीं तो देयर इज नो पॉइंट। आगे नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे? आगे से हर एंट्री 10,000 के हिसाब से रहेगी, जितने शेयर्स हमने अलॉट किए उसके हिसाब से एंट्री रहेगी। थर्ड, अब हम अलॉटमेंट मनी 5 रुपए मांगेंगे। शेयर अलॉटमेंट कितने? 10,000 के पीछे 5 रुपए, 12 नहीं 10। जिनको आपने रिग्रेट लेटर भेजा और उनके अलॉटमेंट में मांगे तो आपको थप्पड़ मारेंगे, बोलेंगे क्या चल रहा है। उनसे नहीं मांगना है, 2000 शेयर्स के पीछे नहीं मांगना है, 10,000 वालों के पीछे मांगना है। 2, मांगते टाइम 5 का बाइफर्केशन, उसमें से कैपिटल कितना है, उसमें से प्रीमियम कितना है। सर 50,000 में से 30,000 का कैपिटल है, 20,000 का प्रीमियम है। हमने उनसे टोटल 50,000 मांगे, उनसे आएंगे पैसे बैंक अकाउंट में। मुझे 10,000 के पीछे 50,000 टोटल आनी चाहिए। उसमें से राम है जिसके पास 500 शेयर्स है, उसने नहीं दिया। बट सीता है जिसके पास 100 शेयर्स है, उसने मुझे कॉल का भी पैसा दे दिया। ठीक है, तो मुझे अलॉटमेंट के टाइम राम छोड़ के अलॉटमेंट का सब आ गया और सीता का मुझे कॉल का भी आ गया। आगे जिसने पेड नहीं किया वो इन एरियस, कॉल्स इन एरियस 500 मल्टीप्लाई बाय 5। जिसने एक्सेस पेड किया उतना बैंक में डेबिट हुआ है तो उतना करस्पॉन्डिंग क्रेडिट भी होना चाहिए। 2, कॉल्स रिसीव्ड इन एडवांस 100 मल्टीप्लाई बाय 5। 2, शेयर अलॉटमेंट अपने आप क्लोज हो जाएगा, टेंशन ही नहीं लेना है। शेयर अलॉटमेंट 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई 5 जितना डेबिट है उतना क्रेडिट भी है। यहाँ पे जितना 500 लेस डेबिट है बैंक में उतना यहाँ पे डेबिट है, एरियाज बोल के। आगे एंट्री टैली होगी। नंबर 5, अब हम कॉल मांगिए। हम राम से भी कॉल मांगेंगे, भले ही हमें पता है उसने अलॉटमेंट नहीं दिया है, फिर भी हम उससे कॉल मांगेंगे। ठीक है, और सीता उसने हमें अलॉटमेंट के टाइम ही कॉल पैसा दिया है, फिर भी हम मांगे बिकॉज हमें उसका कैपिटल की एंट्री अभी बाकी है उसकी, तो हम मांगते टाइम सबसे मांगेंगे। तो एंट्री आएगी शेयर फर्स्ट कॉल। मांगते टाइम 10,000 शेयर्स के पीछे 5 रुपीज मांगेंगे, उसका बाइफर्केशन टू कैपिटल टू प्रीमियम। कैपिटल में 30,000 जाएगा, प्रीमियम में 20,000 जाएगा। तो हमने मांगे पैसे बट हमें पूरे के पूरे पैसे आएंगे नहीं। हमें अब 2 लोग नहीं पे करेंगे कॉल के टाइम। कौन? 10,000 के पीछे भले ही मैंने 5 रुपए मांगे, उसमें से राम विल कंटिन्यू टू डिफॉल्ट। उसके 2 डिफॉल्ट हो गए, एक अलॉटमेंट का 5 रुपए एंड फर्स्ट कॉल का 5 रुपीज। सीता भी नहीं पे करेगी 100 के पीछे। सर क्यों सीता नहीं पे करेगी? बिकॉज सीता ने आपको यहाँ पे ही पैसा दे चुके हैं, सीता आपको यहाँ पे 500 रुपए दे चुकी है। ठीक है, तो वो भी नहीं पे करेगी। अच्छा, अब क्या करेंगे? जिसने पेड नहीं किया वो एरियस में डेबिट, जिसने डिफॉल्ट किया वो एरियस में, राम के 2,500 रुपए। यहाँ पे कॉल्स रिसीव्ड इन एडवांस वो क्रेडिट हुआ था, अब वो कैंसिल हो जाएगा, वो एडजस्ट हो गया, मतलब 100 मल्टीप्लाई बाय 5। सो जितना बैंक में नहीं आया उतना डेबिट कर दिया, तो फर्स्ट कॉल अपने आप क्लोज हो जाएगा। डोंट वरी। लिखो, एक्चुअली एक्सेप्ट दिस फर्स्ट 2 एंट्रीज, बाकी ऑल एंट्रीज इन केस 1 एंड केस 2 आर सेम।
except first two entries, all other entries are same in case 1 and case 2. लिखो, हिशोब लावता आला पाहिजे, किसने कितना दिया, किससे कितना एक्स्ट्रा आया है, बाद में वो कितना कम देगा, किसने अभी तक पैसा नहीं दिया. अगर ये क्वेश्चंस खुद से पूछोगे, यू विल गेट द आंसर. मैं सिंपल मेरे दिमाग में रहता है, राम से मुझे टोटल 14 रुपए लेने, उसमें से 4 रुपए आ गए, 10 नहीं आई. ये 10 जो नहीं आए उसमें से 4 रुपए का प्रीमियम नहीं आया एंड 6 रुपीज का कैपिटल नहीं आया. ये जो 4 रुपए आया वो कैपिटल है. मुझे टोटल 14 रुपीज किससे लेने, राम से. उसमें से एप्लीकेशन के टाइम उसने 4 दिए, वो पूरा का पूरा कैपिटल था. मतलब उसने हमें 10 रुपीज नहीं दिया. 10 में से 4 रुपीज प्रीमियम उसने नहीं दिया, 6 रुपीज कैपिटल उसने नहीं दिया. अगर आपको कोई बोलता है राम ने आपको क्या नहीं दिया, तो आप बोलोगे 6 रुपीज का कैपिटल एंड 4 रुपए का प्रीमियम, उसने टोटल 10 रुपए हमें नहीं दिया. आगे, जितना एक्स्ट्रा सब्सक्राइब होगा उतना हम रिफंड करेंगे. क्वेश्चन में लिखा है एक्सेस एप्लीकेशंस वर टू बी रिजेक्टेड एंड रिफंडेड. मैंने बहुत सिंपल रखा है, लिख लेना, मेक इट फास्ट. अब ध्यान देना, क्या आपके टेक्स्ट बुक पे देखते हैं क्या क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन से ध्यान देना. क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे. ओके, लेट मी चेक. क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान देना. अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 1. ध्यान देना, व्हाट इज गिवन. Vijay Limited was registered with authorized capital of rupees 15 lakhs divided into 1,50,000 equity shares of rupees 10 each. Authorized capital मतलब उतना कैपिटल वो उतने शेयर्स इश्यू कर सकते हैं. कितने शेयर्स इश्यू कर सकते हैं, 1,50,000. So articles of association, AOA has given them permission, has authorized them, right, to issue overall 1,50,000 shares.
हाउएवर कंपनी ने कितने इशू किए? 1 लाख। सो आप 1,50,000 शेयर्स इशू कर सकते हो, बट कंपनी को जरूरत नहीं होगी उतने शेयर्स इशू करने की। उन्होंने खाली 1 लाख शेयर्स इशू किए। सर बाकी का क्या? बाद में कभी आप इशू करो, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, आप बाद में इशू कर सकते हो ना। आप ये 1,50,000 को इंक्रीज भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ऑथराइज कैपिटल जस्ट एक कैपिटल होता है, उससे ज्यादा कंपनी जा नहीं सकती। अगर आपको उससे ज्यादा जाना है तो आपको ये चेंज करना होगा। आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो कैपिटल क्लॉज होता है उसमें ये कैपिटल लिखा जाता है, राइट? आई कैन शो यू, अगर पॉसिबल है तो। लेट मी चेक। होपफुली होना चाहिए। What is authorized capital? Is a capital authorized by the articles of association. उसके आगे आप नहीं जा सकते। हाँ, अगर उसके आगे जाना है तो एओए आपको अमेंड करना होगा, दैट इज ऑलवेज पॉसिबल, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एंड एओ में लिखा है उतनी शेयर्स आपको इश्यू करने का, ऐसे भी कोई बात नहीं। आगे 1 मिनट हो रहा है वो। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। मेमोरेंडम ऑफ एमओए जो होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें होता है कैपिटल क्लॉज। शायद से मैंने एओए बोला था, आई थिंक। एमओए जो होता है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें होता है कैपिटल क्लॉज। उसमें जो कैपिटल मेंशन किया जाता है उसको बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। मतलब उतना कैपिटल के साथ कंपनी रजिस्टर हुई है, उतने आप मैक्स टू मैक्स इश्यू कर सकते हो। उतने इश्यू करना मैंडेटरी नहीं, उससे आप कम भी इश्यू कर सकते हो। अगर आपको उससे ज्यादा इश्यू करने हैं तो आपको वो एमओए को अमेंड करना होगा, चेंज करना होगा, फिर आप ज्यादा इश्यू कर सकते हो। ओके, एक डाउनलोड हुआ, ध्यान देना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ध्यान देना। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड, टीसीएस, ठीक है। रजिस्टर ऑफिस इज समवेयर इन द मुंबई, एमजी रोड, मुंबई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, रजिस्टर ऑफ द कंपनीज, महाराष्ट्र, मुंबई। मैंने बोला था कंपनीज नीड टू बी रजिस्टर्ड, राइट ना? कंपनी हैज टू रजिस्टर विथ आरओसी, रजिस्टर ऑफ कंपनीज, ठीक है। ध्यान देना क्या लिखा है, ठीक है। सो ये आरओसी ने, रजिस्टर ऑफ कंपनीज ऑफिसर होता है, उसने सर्टिफिकेट दिया है, फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कॉन्सिक्वेंट अपॉन चेंज इन द, नहीं उन्होंने उनका नाम चेंज किया होगा, राइट? विदेश संचार निगम लिमिटेड बोल के उस कंपनी का पहले नाम था। नाउ द नेम ऑफ द सेड कंपनीज, राइट, इज दिस डेज चेंज टू टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड। टाटा कम्युनिकेशंस, मुझे लगा टीसीएस है, टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड, ठीक है। आगे, दिस इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। वो
विदेश संचार निगम लिमिटेड बोल के कंपनी का नाम था, लेटर ऑन इट इज चेंज टू टाटा कम्युनिकेशंस। अभी तो कुछ चलता नहीं टाटा कम्युनिकेशंस का एज सच, ठीक है। देन एमओए देखो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब ये डाउनलोड हुआ इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। द ऑब्जेक्ट, द फर्स्ट क्लॉज इज द ऑब्जेक्ट क्लॉज। कंपनी क्यों बनाई गई है उसके पीछे उसका रीजन है, ठीक है। देन दे हैव सम ऑब्जेक्ट। मुझे आपको कैपिटल क्लॉज दिखाना है, राइट। बहुत लेंदी होते हैं एक्चुअली। देखो क्या लिखा है, ठीक से पढ़ो। द ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 400 crores rupees, 400 crores divided into 40 crores equity shares of rupees 10 each. So total कितने शेयर्स कंपनी इश्यू कर सकती है? 40 crores shares of rupees 10 each. They can issue at 10 or more than 10. There is no problem. But this limit is given by whom? AOA. Articles of Association में लिमिट है, सॉरी MOA, सॉरी AOA बोल रहा हूँ, MOA में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। तो इससे ज्यादा कंपनी नहीं कर सकती इश्यू। बट अगर उनसे 40 करोड़ से भी ज्यादा शेयर्स इश्यू करने हैं तो उनको ये अमेंड करवा के लेना होगा, उनको ये इंक्रीज करना होगा। दैट इज ऑलवेज पॉसिबल। क्या ये मैंडेटरी कि कंपनी मस्ट इश्यू 40 करोड़ शेयर्स? नहीं, कंपनी कैन इश्यू लेस देन। जनरली क्या करते हैं, जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है ना, जनरली आप ज्यादा ही कैपिटल के साथ कंपनी को रजिस्टर करते हो। आप जानबूझ के ज्यादा कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल रखते हो और इश्यू करते टाइम कम ही करते हो। आपको सपोज, मुझे एग्जांपल, मुझे लगता है 10 करोड़ शेयर्स मुझे इश्यू करने, आई विल नेवर रजिस्टर कंपनी विद 10 करोड़ शेयर्स। मैं जनरली ज्यादा ही बोल के करूंगा, क्योंकि फिर कौन चेंज करते बेटा हमेशा। सो जनरली ज्यादा ही, राइट, ऑथराइज कैपिटल के साथ कंपनी रजिस्टर करो। आप धीरे धीरे वो 40 करोड़ शेयर्स इश्यू कर सकते हो। अगर आपको उससे भी ज्यादा करने, आपको एओए अमेंड करना पड़ेगा, ठीक है। देन दिस इज देयर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। ये उनका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है। तो बहुत सारी चीजें रहती हैं। 185 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। आगे नेक्स्ट, सो यहाँ पे क्या हुआ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये जो विजय लिमिटेड है उनके एमओए में, राइट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, राइट, 1,50,000 का कैपिटल मेंशन किया, 1,50,000 शेयर्स का। उसमें से कंपनी ने कितने इश्यू किए? खाली 1 लाख ऑफ रुपीज 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। 10 का शेयर 12 में इशू हुआ है। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 80,000 शेयर्स, अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है। आई नो आप बोलोगे सर 80% शेयर्स ही अप्लाइड हुए। हमने 1 लाख शेयर्स इशू किए, उसमें से 80% शेयर्स ही अप्लाइड हुए। तो सर अंडर सब्सक्रिप्शन है और मिनिमम 90% इशू नहीं हुआ है, तो सर हमारा इशू फ्लॉप हुआ है, हमें सबके पैसे रिफंड करने पड़ेंगे। टेक्निकली यू आर करेक्ट, बट एग्जाम में उन्होंने वैसे बोला नहीं, उन्होंने हमको इंटरेस्ट पास करने को बोला, तो हम करेंगे, हमें ऑप्शन नहीं है। लिटरली दिस इशू कैन नॉट बी डन नाउ, बिकॉज हमने अगर 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं, मिनिमम 90,000 शेयर्स अप्लाइड होने चाहिए। अगर 90,000 शेयर्स अप्लाइड नहीं होते तो सबके पैसे रिफंड करने पड़ेंगे, बट एग्जाम में वो देखा नहीं जाएगा। आगे फाउंडेशन के एग्जाम में ऐसे नहीं रहेगा, डोंट वरी। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 80,000 इक्विटी शेयर्स एंड वर अलॉटेड द शेयर्स। Company received application money of ₹3 per share, allotment money of ₹4 share, including premium, and call money of 3. 3 plus 4, 7. 7, right? 3, 4, right? 3 plus 4, 7. 7 plus 3, 10. First call money. The directors have not made the final call of ₹2 per share. So there are total 4 installments. Application के time ₹3, allotment के time ₹4, फर्स्ट कॉल के टाइम ₹3 एंड सेकंड कॉल के टाइम ₹2। उसमें से कंपनी ने 3 इंस्टॉलमेंट मांगे हैं, लास्ट का इंस्टॉलमेंट अभी तक मांगा ही नहीं है। ऑल द मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, ठीक है। सो हम टेबल करेंगे, सॉल्यूशन लिख लो, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, खाली दिमाग ठंडा रखने का। दिस इज कॉपी पेस्ट, ध्यान देना।
ध्यान देना, टोटल फेस वैल्यू इज 10, इश्यू प्राइस इज ₹12. there is a first call and on final, second and final call. ठीक है, सेकंड एंड फाइनल कॉल. उन्होंने लिखा है आपको एप्लीकेशन के टाइम 3, अलॉटमेंट के टाइम 4, फर्स्ट कॉल के टाइम 3, इसमें प्रीमियम है ₹2 का प्रीमियम है. ये 3 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 3 रहेगा. यू कैन फाइंड आउट मिसिंग फिगर. 3 + 2 5, 5 + 3 8. लास्ट कॉल ₹2 का रहेगा. लास्ट कॉल कितने का रहेगा? ₹2 का. ये टेबल समझ में आ गया? चेक करो, किसी का डाउट है इस टेबल में? एप्लीकेशन के टाइम कंपनी विल रिसीव ₹3 पर शेयर. कंपनी एप्लीकेशन टाइम विल रिसीव 3, अलॉटमेंट के टाइम कंपनी विल डिमांड 4, उसमें से 2 कैपिटल 2 प्रीमियम. फर्स्ट कॉल के टाइम कंपनी विल डिमांड 3, पूरा का पूरा कैपिटल. अगर सेकंड कॉल करती है, अभी तक किया नहीं कंपनी ने, करती तो ₹2 मांगेगी, 2 का 2 क्या रहेगा? कैपिटल. आगे लेट्स स्टार्ट एवरीवन. लिखो फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट. पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 80,000 शेयर्स ओनली. सो 80,000 के पीछे यू विल रिसीव एप्लीकेशन मनी ऑफ 3. 2 शेयर एप्लीकेशन, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 3. किसी का डाउट यहां तक? भले ही ऑथराइज कैपिटल 1,50,000 है, ऑथराइज कैपिटल 1,50,000 है, ठीक है, ऑथराइज कैपिटल 1,50,000 है, उसमें से इश्यू कितना हुआ है? 1,00,000, बट पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया? 80. ठीक है, सो 80,000 के पीछे आई रिसीव ₹3. बराबर. नेक्स्ट सेकंड, नाउ आई विल अलॉट द शेयर्स. एक्चुअली आई शुड नॉट अलॉट द शेयर्स टेक्निकली, बिकॉज 90% क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ है, बट क्वेश्चन में लिखा है कि शेयर्स वी हैव बीन अलॉटेड, तो हम करेंगे. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 3. 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 80,000 मल्टीप्लाई बाय 2 टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम. 80,000 मल्टीप्लाई बाय 3 का 3 कैपिटल है, प्रीमियम कुछ भी नहीं है. ठीक है, रिफंड का कोई सवाल नहीं बिकॉज अंडर सब्सक्रिप्शन है. नंबर 3, नाउ डिमांड अलॉटमेंट मनी ऑफ 4. चलो ₹4 मांगेंगे. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 80,000 के पीछे डिमांड ₹4. 2 शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम. 80,000 मल्टीप्लाई बाय 4 में से ₹2 कैपिटल है एंड ₹2 प्रीमियम है. ₹2 कैपिटल, ₹2 प्रीमियम. बराबर. आगे नंबर 4 ध्यान देना, ये हो गया आपका. आपने मांगे 80,000 के पीछे ₹4 और आपको सबने पेड किया है. देयर इज अ शेयर होल्डर, डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर, उसने एप्लीकेशन पेड किया, उसने अलॉटमेंट भी पेड किया. ही फेल टू पे फर्स्ट कॉल. ठीक से पढ़ो, उन्होंने लिखा ही फेल टू पे फर्स्ट कॉल. ठीक है, तो अलॉटमेंट के टाइम आपने 80,000 शेयर्स के पीछे ₹4 मांगे और आपको सबने दिए. बैंक अकाउंट डेबिट. 2 शेयर अलॉटमेंट. $80,000 मल्टीप्लाई बाय 4. नंबर 5. ठीक है, अब हम क्या कौन सा पैसा मांगेंगे? फर्स्ट कॉल का मांगेंगे. चलो मांगते हैं. शेयर फर्स्ट कॉल
हम 80,000 के पीछे फर्स्ट कॉल का कितना है, लेट मी चेक। फर्स्ट कॉल का कितना है, 3 रुपीज मांगना है। 3 का 3 कैपिटल है, 3 टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 3। आगे ध्यान देना, आगे देन नंबर 6, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। अब रिसीव द मनी, बैंक अकाउंट डेबिट। यहां पे किसने डिफॉल्ट किया है, एक्चुअली आई शुड हैव रिसीव्ड 80,000 के पीछे 3 रुपीज, बट देयर इज अ शेयर होल्डर हु होल्ड्स, लिखा है उन्होंने, जिसके पास 500 शेयर्स है, डिड नॉट पेड फर्स्ट कॉल, उसने आपको फर्स्ट कॉल पेड नहीं किया। 500 multiply by, he didn't paid me first call of rupees 3, he didn't paid me first call of 3, मतलब 80,000 शेयर्स के पीछे मैंने 3 रुपीज मांगे फर्स्ट कॉल के लिए, उसमें से एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर्स है उसने पेड नहीं किया, मतलब एक्चुअली 80,000 माइनस 500, 79,500 वालों ने मुझे 3 रुपए दे दिए। जिसने पेड नहीं किया उसे रिसीवेबल है कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में। 500 मल्टीप्लाई बाय 3, 2, फर्स्ट कॉल अपने आप कैंसिल हो जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल 80,000 मल्टीप्लाई बाय, सर लास्ट कॉल की एंट्री नहीं करनी है क्या, सर लास्ट कॉल की एंट्री नहीं करनी क्या, उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है, द डायरेक्टर्स हैव नॉट मेड द फाइनल कॉल ऑफ ₹2, उन्होंने बोला है फाइनल कॉल किया नहीं तो उसकी एंट्री आएगी क्या, नहीं, जब करेंगे तब एंट्री आएगी, क्या एंट्री आएगी, ध्यान देना। अगर इफ कंपनी कॉल्स लास्ट कॉल, कॉल्स फॉर सेकंड कॉल, तब एंट्री आएगी, तब क्या एंट्री आएगी, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट। $80,000 के पीछे सेकंड कॉल इज 2 रुपीज, 2 शेयर कैपिटल कितना, प्रीमियम कितना, पूरा का पूरा कैपिटल है, प्रीमियम है ही नहीं कुछ। देन कंपनी विल रिसीव मनी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। ये 80,000 के पीछे 2 रुपीज आनी चाहिए, बट एक बंदा है 500 शेयर्स, सपोज वो डिफॉल्ट कंटिन्यू करता है 2 रुपीज, ठीक है, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट, 500 मल्टीप्लाई बाय 2, सेकंड शेयर सेकंड कॉल अपने आप टैली हो जाएगा। मतलब उसने आपको यहाँ पे भी 3 रुपीज नहीं दिए 500 के पीछे, और यहाँ पे उसने आपको 2 रुपीज नहीं दिए 500 के पीछे, ठीक है। इफ कंपनी कॉल्स फॉर सेकंड कॉल एंड द डिफॉल्ट कंटिन्यूस, क्या हमेशा डिफॉल्ट होगा क्या, नहीं। सपोज ऐसे मान के चलो, राइट, यहां पे लिखो एंड डिफॉल्ट कंटिन्यू, दिस इज दैट केस, सपोज ऐसे होता है, इफ कंपनी कॉल्स फॉर सेकंड कॉल एंड the defaulting shareholder paid first call along with the second call, paid first call with second call, मतलब उसने क्या किया, फर्स्ट कॉल के टाइम तो उसने पैसे नहीं दिए थे, फर्स्ट कॉल के टाइम उसने 3 रुपए नहीं दिया था, फर्स्ट कॉल का उसने हमें 3 रुपीज नहीं दिया था, बट सेकंड कॉल के टाइम उसने हमें ये 2 रुपए प्लस वो 3 रुपए दिए, मतलब वो बोला था कि मैं तब नहीं दे पाया था, अब ले लो। सो अभी के 2 रुपए और पहले के 3 रुपए वो हमें 5 रुपए देगा, ठीक है। तब एंट्री क्या आएगी, पहले तो हमें
वी विल आस्क द मनी। पहले हम 80,000 वालों से 2 रुपए मांगेंगे, ये तो वही होगा, 80,000 वालों से हम पैसे मांगेंगे। और फिर होगा क्या, ध्यान देना, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। 80,000 के पीछे 2 रुपीज आ गए, वो पूरे आ जाएंगे, प्लस वो 500 वाला, इसने पहले जो 3 रुपए नहीं दिए थे हमें, पहले जो 3 रुपए नहीं दिए थे, अब वो 3 रुपए देगा। 2 कॉल्स इन एरियस कैंसिल हो गया। पहले जब उसने हमें 3 रुपीज नहीं दिए थे, तब मैंने डेबिट किया था कॉल्स इन एरियस को, देखो। तो तब मैंने डेबिट किया था कॉल्स इन एरियस को, जो पैसे आएंगे तब इंटर की बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियस। उसने मुझे 3 रुपए दे दिए, तो मैं कैंसिल कर दूंगा एरियस। 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 2। सो उस 500 वाले ने हमें 80,000 में छुपाया, वो 500 वाला, उसने 2 रुपए दिए, प्लस पहले के 3 रुपए भी दिए। तो जब वो 3 रुपए वो एरियस में थे, डेबिट किया था, तब मैंने रिसीवेबल दिखाया था, जब आएंगे तब एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियस। दिस इज द एंट्री। तो मैं आपको 2 सर्कमस्टेंसेस समझाए। लास्ट कॉल के टाइम इफ डिफॉल्ट कंटिन्यूस, तो नया कॉल्स इन एरियस और बन जाएगा। बट अगर वो डिफॉल्ट क्लियर कर देता है, तो पहले का कॉल्स इन एरियस कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज द एंट्री। लिखो, मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। You need practice, try to understand. You guys need a lot of practice for this chapter. और बहुत बच्चे बोल रहे हैं हमें कॉलेज में नहीं समझा, हमें बाकी क्लासेस में नहीं समझा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। उसके पीछे एक तो सिखाना है, और दूसरी बात है द लैक ऑफ प्रैक्टिस। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। वी विल डू प्रैक्टिस, हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज अब मेजर चैप्टर में से यही चैप्टर बाकी है। दे सेड प्रिपेयर बैलेंस शीट, में बाद में बैलेंस शीट करवा के दूंगा। मैंने अभी तक बैलेंस शीट फॉर्मेट भी नहीं सिखाया, मैंने थोड़ी थ्योरी भी नहीं दी। पहले एंट्री समझो, बैलेंस शीट टाइम पास है, ठीक है, मैं वो सिखा दूंगा, डोंट वरी। उसके लिए मैं अलग से क्वेश्चंस ले लूंगा, डोंट वरी, ठीक है। मुझे पहले ये समझाना है कि हाउ टू एडजस्ट कॉल्स इन एरियाज, हाउ टू एडजस्ट कॉल्स रिसीव्ड इन एडवांस। तो अगर जब बैंक में कुछ कम आएगा, बैंक में अगर कुछ कम आएगा, तो उतना डेबिट करो। यू मे रिसीव लेस मनी बिकॉज ऑफ 2 रीजन। 1, बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट, वो कॉल्स इन एरियस को डेबिट होगा। सेकंड, किसी ने आपको पहले ही एडवांस में दिया होगा, अब वो नहीं देगा, इसलिए डेबिट करो कॉल्स रिसीव्ड एडवांस। यू विल रिसीव लेस मनी, यू विल रिसीव लेस मनी बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। 1, डिफॉल्ट कंटिन्यूस, डिफॉल्ट हो रहा है, वो कॉल्स इन एरियस को डेबिट किया जाएगा। दूसरा रीजन हो सकता है वो एक बंदा हमें अभी कम दे रहा है, बिकॉज उसने पहले हमें ज्यादा दिया होगा, तब हमने कॉल्स रिसीव एडवांस को क्रेडिट किया होगा, उसको डेबिट करो, ठीक है। आगे, वी में रिसीव मनी एक्स्ट्रा, हमें बैंक में एक्स्ट्रा आएगा, उसके पीछे भी 2 रीजन हो सकते हैं। एक, किसी ने हमें एडवांस में पैसे दिए, तो हम कॉल्स रिसीव एडवांस को क्रेडिट करेंगे। दूसरा हो सकता है पहले उसने डिफॉल्ट किया था, आज वो पैसा दे रहा है, पहले डिफॉल्ट किया था, आज पैसा दे रहा है, तब एंट्री आएगी, तब एंट्री आएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कॉल्स इन एरियस को कैंसिल करेंगे, तो कहां पे तो लिख लेना, कहां पे तो लिख लेना एक एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियस अकाउंट डेबिट। तो बैंक में जो माइनस होगा, उसके पीछे 2 रीजन हो सकते हैं। बैंक में जो माइनस होगा, उसके पीछे 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो कॉल्स इन एरियस और कॉल्स रिसीव्ड इन एडवांस, ऑलरेडी रिसीव्ड एडवांस, वो एडजस्ट हो रहे हैं, ये हम एडजस्ट कर रहे हैं। पहले जो रिसीव्ड थे वो एडजस्ट हो रहे हैं। 2, समटाइम्स यू रिसीव एक्स्ट्रा इन द बैंक, जितना चाहिए था उससे ज्यादा आएगा, उसके पीछे हो सकता है रीजन कॉल्स रिसीव्ड इन एडवांस, ये नए कॉल्स रिसीव्ड एडवांस है 2, या कॉल्स इन एरियस हो सकता है, ये एडजस्ट हो रहा है।
पहले के रिसीवेबल अभी आ गए। सो टू शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, जो भी शेयर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल एक्सेट्रा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसमें से कुछ भी हो सकता है। व्हाट इज दिस? इज न्यू एरियाज, दिस इज न्यू एरियाज, दिस इज राइट received advance adjusted, received in advance now adjusted, पहले ही जो पैसा है तो वो एडजस्ट किया। ये क्या है? न्यू रिसीव्ड एडवांस, न्यू रिसीव्ड, अभी जो रिसीव्ड एडवांस आए हैं। तो व्हाट इज दिस? राइट, अर्लियर एरियर्स नाउ रिसीव्ड, अर्लियर इन एरियर्स नाउ रिसीव्ड। अगर इस कॉल में कुछ एरियर्स में है तो वो डेबिट होगा, इस कॉल में कुछ एडवांस में है आया है तो क्रेडिट होगा। इस बार कम आ रहा है बिकॉज पहले ही एडवांस में आया है, वो डेबिट होगा। और ऐसे हो सकता है कि इस बार ज्यादा आया है बिकॉज पहले ही उतना देना बाकी था तो वो क्रेडिट होगा, वो कैंसिल होगा। ये दिस इज कंबाइंड एंट्री फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। हम और प्रैक्टिस करेंगे ऑब्वियसली। कल मेरा लेक्चर रहेगा बराबर ना, पहले मैथ्स होगा तुम लोगों का, फिर मेरा लेक्चर रहेगा, ठीक है। सो आज अभी हम यहाँ पे रुकते हैं, ठीक है। सो कल मैं और प्रैक्टिस ले लूंगा रिसीव्ड एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर्स की, सो दैट वी कैन मूव टुवर्ड्स फॉरफीचर ऑफ द शेयर्स। जब तक ये समझ में नहीं आएगा वी कैन नॉट मूव टुवर्ड्स फॉरफीचर, ठीक है। किसी के डाउट्स है अभी तक? आई विल शेयर द पीडीएफ, आई विल ऑल्सो शेयर द पीडीएफ, आपके पास क्वेश्चंस वगैरह डिटेल में रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।